اپنی طرف آپ سے مجھے بکواس کوئی بھی کرتے رام ہو. دکھا دیں جس میں کہا گیا ہو کہ تو ذلی برودی نبی ہے. کہیں بھی مرزا صاحب کو اللہ نے کہا ہو کہ تو ذلی برودی نبی ہے, مجھے دکھا دیں. میں تو آج پھر تم یہی آپ کے ثابت امام کرنا پہ چاہتے ہو نا, ایمان لے آؤں گا. اللہ نے تو نہیں میں کہا, مرزا میں غلام محمد نے آج جھوٹ ہی بولا جمبا لوگوں سے. صاحب علیہ رحمہ پہ اور لانتی مرزائی, میں یہی تو آج ہی تم کہہ رہے ہو جمبا کہ تم صاحب مرزا علیہ صاحب رحمہ پہ کو ایمان لے فراڈی آؤں ثابت کر گا. رہے ہو. تم مرزا صاحب کو فراڈی ثابت کر رہے ہو میں کہ آج ہی اللہ نے تو جمبا وحی میں صاحب نہیں کہا میں کہ وہ آج ہی لوگوں کو جمبا صاحب دھوکہ علیہ دیتے رہے. رحمہ پہ ایمان لے آؤں گا. اور بھائی میں لانتی, یہی تو آج میں ہی تمہیں جمبا کہہ صاحب رہا ہوں. علیہ رحمہ پہ ایمان لے آؤں گا. آج ہاں, ثابت تو کرتے ہیں کہ تیرے جیسے بیوقوف کا مرزا ایمان ہم صاحب نے پہ کیا وہی کرنا. اتری تم ہو کہ جہاں بھائی تو دلی تم برودی جہاں نبی, ہو آج وہیں پہ ثابت رہو. کرتے. میں آج تیرے ہی جیسے جمبا صاحب علیہ کیچڑ رحمہ کو پہ ہم پہلے ایمان ہی لے چھوڑ آؤں کے گا. آئے ہیں. اور بھائی تیرے جیسے کیچڑ کو تو ہم چھوڑ کے آئے ہیں, تیرا ایمان ہم نے کیا کرنا ہے. تم جہنم میں جاؤ ہماری طرف سے, ہمیں نہیں آپ نہیں چھوڑ کر تمہارے آئے, جیسا ہم نے آپ کو لات مار بیوقوف کے چاہیے. نکالا ہے. تمہارے سر جیسے کہاں ہیں بیوقوف آپ, نہیں ہمیں ہم نے چاہیے. آپ کو لات مار کے نکالا ہے, آپ نہیں چھوڑ کر آئے ہمارے کو. آپ نے تو 50 سال تک خوب مزے کیے جماعت میں رہ کر, اتنے سارے آپ نے جماعت میں رہ کر اتنے عیش کیے, اتنے اپنے عہدے لیے, عیاشی کی 50 سال تک. جب آپ کی آنکھیں بندی لگوا پڑ گیا تھا آپ کے منہ پر, آپ کے ہاں, منہ پہ لگوا پڑ گیا تھا 50 سال تک. 50 سال بعد آپ کو ہوش آیا ہے. چلو تمہارے مرزا غلام احمد کو بھی 52 سال کی عمر میں ہوش آیا تھا, تو اس کو لقوہ پڑا ہوا تھا مرزائی لانتی. ہاں تو کچھ نبی تو ایسے لانتی بھی گزرے مرزائی, ہیں 40 سال بعد نبوت مل اور گئی آپ لانتی کے مرزائی, مطابق. ایسے لقوہ نبی بھی پڑا تو ہوا ہیں تھا جن 52 کو سال 40 سال تک. بعد نبی ملی ہے. لانتی مرزائی, دیکھیں 52 سال آپ تک لقوہ 52 پڑا سال ہوا پر تھا. جائیں گے تو میں 40 سال پر جاؤں گا. آپ 52 سال پہ جائیں گے تو میں 40 سال پر جاؤں اب گا. یہ ایسے بکواس نبی بھی تو کرے گا, گزرے اس جن کو کو 40 سال اتارو بعد پلیز نبوت کو. ملی ہے. لانتی ہاں بکواس اتار کرے دو, گا. اتار تھلے لا دو, تھلے لا دو, سانو تھلے لا دو, سانو تھلے لا دو. بس یہی آتا ہے نا, جب جواب نہیں سن سکتے تو تھلے لا دو. آپ 50 سال تک رہے جماعت کے اندر, خوب عیاشی کی. چوہان انکل آپ نے عہدے لیے ہیں, میری اس کے بات, بعد جب تک آپ کو 50 سال تک آپ کو لقوہ رحیل پڑ گیا بات تھا سن, منہ پر. اور رحیل 50 میری سال بات تک سنو. آپ کو لقوہ پڑ گیا. تو چپ کرو عثمان, تو چپ کرو عثمان. اوے خدا دا واسطہ بات سن لیا کرو کسی بندے کی, بول تو جاتے پتہ نہیں کیا کھا کے آیا یار. بات سنو پہلے بندے کی, رام سے بات کرو. کیا چیز کچھ تم. خیال کر کے بات کرو کم از کم. نہیں یار عثمان جو بھائی, بڑے بھی عثمان بھائی چوہان انکل سے میری دوستی ہو گئی تھی. چوہان انکل سے میری دوستی ہو گئی تھی, میں بہت اچھا رسپیکٹ میری کرتا تھا ان کی. میری بات کا لیکن جواب آج دو, انہوں نے تمہیں پھر کس نے مرزا کہا صاحب ہے. نے لعنت اوے کیا. ایک منٹ نا یار, اوے صبر تو کر لو. تمہیں کس بندے نے کہا کہ تم نے مرزا صاحب کے خلاف بات کی, تم وہ نہیں ہو جماعت میں سے نہیں ہو سکتے. یہ کس نے کہا ہے تمہیں کہ تم نے یہ بات کی کہ میں عثمان بھائی میری مرزا بات صاحب سنو, کے فہم سے اختلاف عثمان کرتا بھائی ہوں. میری بات یہ تو سن لو. کس نے یہ تمہیں کہا اس کے عثمان بھائی اوپر. میری بات سنو, عثمان بھائی میری بات سنو. چوہان انکل سے میری دوستی ہو گئی تھی, بہت رسپیکٹ کر رہا تھا میں. انہوں نے آج مرزا صاحب کے بارے میں پھر غلط بات کی, تو اب ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں 50 سال تک کی جماعت میں رہے تھے. جب ان کو لات پڑ گئی تو انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا خلیفۃ الثانی پر اور مرزا صاحب اوے پر. بس صبر 50 سال کر بعد لو ان نا, کو ہوش صبر آیا. کر لو, صبر کر لو. میری بات کا جواب دے دو. کس بندے نے تمہیں یہ کہا کہ جب تم نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کے فہم سے اختلاف ہو سکتا ہے, تو تمہیں کس بندے نے کہا کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے, تم جماعت میں نہیں ہو سکتے. یہ کس نے بات کی ہے. سب سے پہلے تو مجھے رضی بھائی نے کہا تھا, کیونکہ رضی بھائی مجھے یہ بولتے رضی تھے بھائی نے تم کہا. غیرت جماعت کے براڈ پہ نہ جاؤ. وہ مجھے کہتے تھے تم غیرت جماعت کی براڈ پہ نہ جاؤ. لیکن میں نے جب ان کو بولا کہ رضی بھائی میں نے تو قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے قرآن پاک کا محفوظ رکھنے کا, اور کسی کتاب کا نہیں لیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار آپ کا اخراج ہو گیا ہے, میں ابھی لیٹر لکھتا ہوں. لیکن میں نے ان کو پرسنل پر بھی کہا کہ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے سر, میرا سب کچھ ریئل مرکز میں ہے. ٹک ٹاک پہ میرا کچھ بھی ریئل نہیں ہے, مرکز میں میرا ریئل ہے. آپ کیسے بتا مجھے میرے خلاف لیٹر لکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اس لیے میں آپ کو سیمٹم بتا رہا تھا کہ آپ غیرت جماعت کی براڈ پہ نہ جانا, یہاں بیٹھنا ہمارے پاس سیکھنے کے لیے. اتنی سی بات تھی. اچھا نہیں, یہ تمہارا جو تم کہتے ہو نا کہ السلام علیکم مرزا بشیر بھائی, آپ صاحب نے کے. نوٹ کیا یہ اس نے ابھی بھی بات کی ہے 40 سال کے اوپر میں جاؤں گا. آپ نے بات نوٹ یہ کی اس کی, راہیل کی, اس کون نے بھی کہا کہ میں کس 40 سال کس کے اوپر جاؤں گا کس اگر کی 52 سال پہ جائیں کس گے کی تو. بات کی, 40 سال کی کس کی بات کی رہی تم نے, میں سنی نہیں یار. یہ راہیل جو ہے, یہ ابھی چوہان صاحب نے بات مرا ہوا تھا, یہ غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے تھے چوہان صاحب, اور یہ راہیل بےغیرت ذلیل انسان, اس نے اسی ٹائم بھونک کے کہا ہے کہ میں اگر آپ 52 سال پہ جاؤں گا تو میں 40 سال پہ جاؤں گا. اور یہ کیا بات کی یہ تم نے بےغیرت ریلی یہ انسان جو والی, ادھر بیٹھا ہوا ہے حرام زادہ. ریلی کیا تو پھر بات کی تم نے ہمارا یہ ایمان نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ کس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت عطا ہوئی.
ہمارا یہ ایمان ہے. تو اس پہ نبی تمہارا کریم کیا صلی اللہ اعتراض ہے علیہ اس پہ؟ وسلم کو وہ چاہتے ہیں. حرام زادے ہے، وہ حرام کوئی زادے اعتراض نہیں ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہے, میرا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اس پر, انسان. میرا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اس پر, کسی مسلمان کا اعتراض نہیں ہے اس پر کہ نبی کریم تو صلی پھر اللہ علیہ تم نے وسلم یہ کو بات کی 40 کیوں؟ سال میں وہ کہہ نبوت رہے دی. تم نے یہ بات کی ہے، وہ تم نے اس لیے کیوں یہ بات کی ہے پھر؟ وہ اس لیے کی کہ چوہان صاحب نے کہا کہ 52 سال میں تمہارے مسیح موعود کو ہوش نہیں آیا تھا, 52 سال تک لقمہ پڑ گیا تھا, تو اس پر وہ میں نے کہا کہ حرام نبی کریم صلی زادے اللہ علیہ وسلم کو تمہاری 40 وہ سال بعد چوہان نبوت صاحب دی کی گئی. بات نہیں تو ہو رہی اس ہے، میں تو نے بات کر رہی ہے جنبا صاحب اس کی میں بات دے کر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ جا رہا ہے بغیر انسان. نہیں تمہیں پتہ بھی ہے تم یہ بات کر کے کیا کس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو؟ پتہ تمہیں اس بات کا کہ تم اس طرح کی بات مثال دو گے عثمان بھائی آپ میں صلی نے اللہ علیہ تو وسلم کے سچ بات بولی ہے نا, ہمارا ایمان ہے یہ. عثمان بھائی ہمارا تو ایمان ہے نا, 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ اس کے وسلم کو بچے یہ نبوت بتاؤ دی. مقصد کیا تھا تمہارا یہ بات کرنے کا؟ سوال یہ یہ ہے. بات کا مقصد کیا ہے وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ مقصد 40 یہ سال تھا میں ان کو نبوت کہ ملی ہے. مرزا صاحب علیہ رحمہ کو مرزا صاحب کو 52 سال میں اللہ تعالیٰ نے وہی الہام کرنا شروع کیا. مرزا صاحب کو 52 سال سے پہلے نہیں کیا, ان کا عقیدہ دوسرا تھا. اسی طریقے سے کس نبی نے کریم کہا صلی کہ اللہ علیہ وسلم کو 40 سال مرزا بعد صاحب نے کہا کہ نبوت. ان کو 52 سال کی عمر میں الہام ہوا ہے شروع؟ یہ چوہان صاحب نے کہا ہے نا ابھی, میری بات چوہان سنو, صاحب نے کہا ہے. بھابھی کو ایک کچھ منٹ اور ایک ہو رہی منٹ تھی، مطلب ایک کہیں منٹ اور میری لے بات گیا سنو, یہ. میری ایک بات سنو. دیکھو تم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو نا آخرت میں, تو اس طرح کی جو حرام زدگیاں نا یہ نہ کرو, اس کا تمہیں بہت نقصان ہوگا. بات تمہاری ہو رہی ہے چوہان صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, چوہان صاحب اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میں 50-55 سال تک جو ہے وہ اس جماعت میں رہا ہوں, وہ اپنی بات کر رہے ہیں. تم اٹھا نہیں کے نہیں بعد لے عثمان کے بھائی جاؤ. ایسی بات نہیں تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بات ہوئی تھی, میں آپ کو بتا دیتا تو ہوں. چوہان چوہان صاحب صاحب نے کہا, مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں نا, تو اس میں نہیں آپ سن لینا, میں بتا دیتا ہوں نا کیا بات ہوئی تھی, بتا دیتا ہوں نا, میں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, میں بتا دیتا ہوں کیا بات ہوئی تھی. دیکھیے یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ چوہان صاحب آپ 50 سال تک جماعت میں رہے, جب آپ کو جماعت کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آئی, 50 سال بعد آپ نے جماعت پہ اور مرزا خلیفۃ الثانی پر بھونکنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ 52 سال تک تمہارے مرزا کو بھی تو ہوش نہیں آیا تھا, اس کے منہ میں بھی تو لقوہ پڑ گیا تھا. تو میں نے اس پر کہا کہ نبوت ملنے کا واقعہ مرزا صاحب کو 52 سال میں ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں ہوا, اس میں بری کیا بات ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں بعد وہاں نبوت جاؤں ملی. گا، ہمارا لیکن ایمان وہاں ہے, جاؤں گا. اس میں غلط بڑی کیا ہے بات کہ بولی. جب بھی کوئی بات بات یہ ہوتی ہے تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں لے آتے ہو, تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تھوڑی سی ہاں تمہارے اندر بات غیرت یہ ہوتی ہے نا, کہ تم اپنے ہاں باپ کے نام لیتے ہو, تم کسی کا بھی نام لیتے ہو, تم مطلب سمجھ سے باہر ہے میری, تم لوگ اتنے گستاخی پہ آ جاتے ہو. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کچھ غلط کہا ہے چکن صاحب؟ نہیں, میں نے سنا نہیں ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا میں ہے نے کہ بھی میں نہیں سنا. 40 سال کا, ہاں میں اس نے نے کچھ کوئی کہا ہے غلط تو بات نہیں پیر بولی صاحب، بھائی, میں ایک میں نے منٹ کوئی بھی غلط بات نہیں بولی, پیر غلط بات بھی صاحب، نہیں کی. پیر صاحب بھائی ایک چوہان منٹ بھائی صاحب بات کی تو اور کرنے دو. راہیل کی آپس میں بات ہو رہی تھی. چوہان صاحب نے کہا کہ تمہارا جو غلام احمد قادیانی ہے, ٹھیک ہے, جو مزیوں کا وہ کیونکہ وہ مینشن کرتے ہیں کہ وہ 52 سال تک وہ سویا ہوا تھا, مرا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈفرینٹ تھا, وہ چپ کر ٹھیک ہے. جاؤ, تو چپ کر رانا, اور رانا اپنی اور بے میں غیرتی بند تیرے کر, گھر میں بے گھس جاؤں غیرتی گا, بند کر انسان کا اپنی. بچہ بن, تو انسان کا بچہ بات بیٹھ کرنے وہ دو تو نا. بندے کا رحیل پتر صاحب بند, بات وہ تو بندے کا پتر بند, رحیل تمیز صاحب سے بات بات کر, کرنے بندے کا دیجیے. رحیل جی سن تو, بات ٹھیک کرنے ہے دے نا. دیجیے, اور رحیل تو بات بندہ کرنے بن جا, دیجیے. تو اس رانا کے بندہ بن جا, بعد بندہ اس کے بن جا, تو بعد رانا. یہ بھونکا ہے راہیل کے میں اگر تم کٹنی 52 عورتوں سال کی میں طرح جاؤ گے تو جھگڑا میں 40 کروانے آ سال میں گیا جاؤں گا. ہے, پھاپی کٹنی عورتوں کی طرح جھگڑا کروانے آ گیا. وہ کوئی خراب, رحیل صاحب بات کوئی کرنے گستاخی دیجیے. نہیں کی تھی. راہیل نے چوہان رحیل کہا صاحب کہ بات تم کرنے دیجیے. 52 سال پہ جاؤ گے تو میں 40 سال کی عمر رحیل اس پہ صاحب جاؤں گا بات نبوت کرنے پر, دیجیے یہ کہا ہے. پلیز. بات کرنے دیجیے, کیا بات ہوئی ہے. اچھا جی بولے بھائی, آرام سے بولیں, کیا کیا کہا اس نے؟ جی چوہان صاحب کی اور اس کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی, تو چوہان صاحب کے وہ ایج کے اوپر آ گیا تھا کہ مطلب 50 سال تم نے ہمارے یہاں عیاشی کی ہے. بھائی چپ کرو, رحیل چپ کرو, رحیل چپ کرو, رحیل چلے رحیل چپ کرو. طارق چوہان صاحب پلیز آپ اپنے کلیئر کریں پلیز اپنا. رحیل چپ کرو. چوہان بھائیوں صاحب کا آپ ذرا یہی ایکسپلین ہے کر کے کہ بتائیں, اگر میں پیر غلط کہہ رہا صاحب, ہوں تو آپ بتائیں پلیز. مرزا صاحب تم پیر تلک صاحب, بات کرو آپ تو چوہان تم انکل سے حضرت پوچھ لیں, میں نے محمد صلی اگر اللہ کوئی علیہ غلط بات وسلم کے بولی ہے تو آپ تلک. چوہان انکل سے پوچھ لیں. اور غلط بات تم نے تم بولی چپ تو کرو, بولی تھی نا, اس غلط چپ تو بات کرو. بولی تھی, تبھی تو میں نے پھر بند کر دی تمہارے ساتھ بات. مجھے اوپر پتا کیوں تھا آئے, اب تم میل نے کیوں کیا آئے کرنا. اوپر, اسی لیے آئے ہیں نا اوپر.
जी मैं तो आमतौर पे लाइव के ऊपर आता ही नहीं हूँ, मैं जिससे बैठ के सुनता रहता हूँ। जब इसने बात की तो मैं लाइव पे आया हूँ, और बिल्कुल चौहान साहब बिल्कुल बैठे हुए हैं लाइव पे, चौहान साहब से कंफर्म कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, इसने कहा था कि अगर तुम 52 साल इस तरह करोगे तो मैं 40 साल पीछे जाऊंगा और वो कर 40 साल की वाली बात करूंगा। तो मतलब एतराज ही करना है ना, क्या एतराज है इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? करे एतराज, जवाब हम देते हैं। इस खबीस को बोले कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, बल्कि ईमान है हमारा, फिर हमारा ईमान है, अपनी खबासत क्यों निकाली अपने मुंह से अल्फाज क्यों हमारा निकाले ईमान तुमने? है, कोई एतराज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत तुम मिली है, अपने हमारा कज़्ज़ाब ईमान मिर्जा है। कादियानी को साबित नहीं कर सकते हो तो तू नबी पाक कज़्ज़ाब है सल्लल्लाहु हो, अलैहि तू वसल्लम पे कज़्ज़ाब है हो, बंदा बन जा, कंजरी दे, बंदा बन जा। जाओगे। ओए मिर्जा कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि जा वसल्लम की हदीस के कंजरी दे, मुताबिक कज़्ज़ाब दलिया बन दगड़ जाएगा। दली दे बचिया, ये मिर्जा कादियानी वल्दुल हराम कंजरी की औलाद तुम्हें ही कहा है। कंजरी दा बचा। बहरहाल भाई हमने तो नहीं सुनी उन्होंने क्या बकवास किया, और कोई बैद नहीं है जब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने की। ये लोग बकवास करते ही रहे, आपको मालूम है। पीर साहब देखिए, मैं भी नीचे बैठा हुआ था, राणा साहब भी नीचे थे, क्यों ऊपर आए? हमने एतराज था जब ही आए ना। अच्छा किया, अच्छा किया, लेकिन ये कि हमने नहीं सुना बहरहाल। नहीं वो उनकी तारिक चौहान की और आपस में हो रही थी, वहां इसको जाने की जरूरत क्या थी? बस ये ऐसे ही है, अब ये ऐसे आप ही है ना। खुद सोचिए ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, इससे इसका ताल्लुक क्या बनता है? जिक्र क्या बनता है? क्या कहना चाह रहा था? सवाल तो ये है ना। यही तो कुछ आदमी मिर्जाइयत है ना भाई, इसी को मिर्जाइयत कहते हैं भाई। हम ये बात कर रहे हैं, हालांकि उनसे अच्छी बात हो रही है भाई। जिसको आप मानते हो सारा कुछ, उससे तुम खुद इख्तिलाफ कर रहे हो, कम से कम उसकी तो मानो। हम तो ये पीर बात कर रहे थे, साहब, लेकिन पीर साहब अगर आप मेरे वालिद को गाली देंगे ना तो मैं बाखुदा वो बात जरूर करूंगा। आप पीर साहब ने मेरे वालिद को गाली दी, गाली दोहराऊंगा नहीं। ये गाली भी दोहराते हैं मिर्जा की, जो इन्होंने जो दी ना, क्या नाम है, लकवे वाली और सारी बातें की हैं उसने, शर्म भी नहीं आती इनको। हमें तो शर्म आएगी कह रहा था हमारे। कि अल्लाह ताला ने इल्हाम करके मिर्जा साहब को दिल्ली बरूदी नहीं कहा, मिर्जा साहब ने आगे लोगों को बताया। तो इसका मतलब है मिर्जा साहब के ऊपर तुम झूठ का इल्जाम लगा रहे हो कि अल्लाह ताला का तो ये मंशा नहीं था, उन्होंने लोगों को गलत बयानी की। यही नतीजा निकलता है ना इस बात का। वो आगे से गालियां देना शुरू हो गया। बहरहाल मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या नहीं दिया, शायद उस वक्त मैं कुछ मिनट के लिए, कोई 2-3 मिनट के लिए शायद मैं नीचे उतर गया था, फिर आया, शायद उस वक्त की बात हो। फिर वो मुझे कह रहा था कि मतलब मैं पहले मिर्जाइयों में था तो मुझे 50 साल तक नहीं समझ आई। तो मैंने कहा इससे तो कोई ऐसी बात नहीं, मिर्जा साहब को 52 साल तक नहीं समझ आई। तो ये क्या ताना हुआ भी कि पहले क्यों नहीं आई? तो उसके बाद फिर उसने दूसरी तरफ फिर गुस्ताखाना उसका था, मतलब कि अगले को तकलीफ पहुंचाना मकसद सिर्फ। तो मैंने कहा मैं इससे बात ना ही करूँ तो बेहतर है। सब समझ आ गई बात आपको? ये तो आसमान के नीचे बदतरीन दजल है, यही है असल बात। इनका कसूर नहीं है, ये ना सुन सुन के ना अपने मरबियों को और टिकटॉक पे अपने अहमदी जो मुबल्लिगीन फिर रहे हैं इनके, इन सब का रवैया एक जैसा हो गया। अब अस्कानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि वो ब्रूजी सूरत में वो कह रहे हैं, अब ब्रूजी सूरत में कोई नबूवत नहीं होती। अब मिर्जाई शुरू करके बैठे होते हैं, पट्टी लगा के नबूवत जारी है। वो कौन सी जारी, कहाँ जारी है? ना पहले मिर्जा साहब से कोई आया, ना बाद में किसी ने आना, ना मिर्जा साहब ने कहा मेरे बाद नबूवत जारी है। और अजराए नबूवत का एक दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, मिर्जाई बना के ये बयानियाँ बैठे होते हैं। तो इसका मतलब तुम मिर्जा साहब के खिलाफ बात कर रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि मिर्जा साहब नबी थे, लोगों को धोखा दे रहे
तो फिर एक फराडी को क्यों नबी बना के बैठे हो बकौल तुम्हारे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेमन भाई आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेमन भाई ने सिर्फ इतना ही कहा रहील से कि मतलब क्या था, तुमने जो रहील ने जो बात की है वो कहना क्या चाह रहा था। तो आज तो बिल्कुल सही पता चल गया। पहले भी वो बदतमीज़ी करता था अपना तारक चौहान साहब के साथ, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल कुछ कहा भी नहीं। अहमद साहब ने तो बिल्कुल पता चलता है कि वो किसी खालस मिर्ज़ाई घराने की परवरिश है रहील की। तो इंतहाई बदतमीज़ी उसने की। असल में वो जो गुस्ताखी की तरफ बात इस तरीके से गई है कि चौहान साहब को पहले रहील ने कहा कि आपको 50 साल तक आप इंजॉय करते रहे जमात के अंदर, मुख्तलिफ ओहदे भी सारा कुछ है, तो लकवा पड़ा हुआ था आपको। तो हालांकि दोनों अहमदी हैं, चौहान साहब भी और रहील भी। तो चौहान साहब ने आगे से कहा कि मिर्ज़ा साहब को लकवा पड़ा हुआ था 52 साल तक। फिर उसने कहा इस बात के ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना लकवे वाला, ये अगर आम बोल चाल में कोई 52 की या 40 वाली ये कोई बात होती तो उसमें इतना नहीं था। उसने पहले चौहान साहब को लकवे की बात की, चौहान साहब ने मिर्ज़ा साहब को वो कहा, उसने कहा 52 साल की बात करोगे तो मैं 40 पे चला जाऊंगा। तो उसका वही मतलब था। तो फिर चौहान साहब ने अच्छा किया कि रुक गए। तो अब ये बात जो है, ये बात बड़ी मुबहम सी है कि वो कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि लफ्ज़ 2 दफ़ा गलत और सख्त इस्तेमाल हो चुका था। तो बात यही है कि उसको उसमें से कुछ निकालना था। और मुर्जा भाई उसने ये कहा है कि मेरा मकसद था कि उनको 40 साल में नबूवत मिली थी। अब वो उसका कहने का ये मकसद वो जो बोल के गया, बात वो मतलब है, वो ऐसी मुबहम सी बात थी ना, वो जू मानी जिसको कहते हैं, तो वो उस तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन लफ्ज़ इतने सख्त इस्तेमाल हो चुके थे, बन नहीं रही थी, बात बन नहीं रही थी ना। जी जी जी, ये बात इस तरफ जा नहीं रही थी जिसने लेकर जा नहीं रही थी। हाँ, वो उस तरफ चला गया ना। तो मतलब है मिर्ज़ा साहब की तो फिर मैंने पूछा क्या मकसद क्या था, बस उसने मुझे गालियां दी ना। तो देख लें, प्रॉब्लम यही है इसकी अगर आप बाकी लाइफ में भी जाके देखो ना, तो पहले ये होता था कि ये थोड़ा बहुत ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा सुलझा हुआ बच्चा सा लगता था। अभी इसमें प्रॉपर जो मुरब्बियों के अंदर वो जो बेगैरती होती है ना, वो इसके अंदर आ चुकी हुई है। ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं सारा दिन लाइव सुनता रहता हूँ, कभी एक लाइव पे गया, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे। अभी खुली अब देखे ना, थोड़ी सी बात की है भाई ने और उसको प्रॉपर गालियों के साथ वो चढ़ा है भाई के ऊपर जी। वो तो मुरब्बियों का इसमें रंग उसने चढ़ता जा गलत रहा है मतलब ही इससे। निकाला था, जो मुझे फील हुआ जी है। जी, ऐसे ही है ना। मैं भी ऊपर आना चाह रहा था लेकिन मैं थोड़ा बिजी था, तो फिर आप आए और अहमद मेमन भाई आ गए। तो ये गैर मुनासिब उसका रवैया था। तो इसके पास है भी कुछ नहीं, बात भी वो करता है। और 2-3 दिन से उसने ये तरीका पकड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि पीर साहब की आवाज़ सभी को आ रही थी। हाँ, बात करें जी, आवाज़ नहीं आ रही, बस शरारत करना है ऐसे। ये आधा पप्पू है, आधा पप्पू। नहीं मिर्जा साहब, एक बात तो मानने की, आज पप्पू के दलाइल से मुंह बंद कर दिया था इसने। जब बोला ना मैं निक्के मिर्जा को छोड़ूंगा नहीं, तो पप्पू ने बोला ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। नहीं तो 2-3 दिन पहले पप्पू ने कहा कि वो उससे भी मैं अब तंग हूँ, मिर्जा जेलमी से भी। छोड़ दिया उसने मेरे जेल में, छोड़। हाँ वही ना, वही वो कह रहा था। और आज उसने एक और बात की है कि जिस तरह ये रहील जान के बात करता है, तो मैं भी बाबों की बात जान के करता हूँ, ये पप्पू ने कहा ऐसे ही कहने के लिए। ये भी उसी का बयान है। ये अपना उस्मान डार भाई कोई आराम भी कीता नहीं, या सवेरे ने माशाल्लाह खिदमत ही कर रहे हो? खिदमत ही कर रहे हैं, चलती रहनी खिदमत। जॉब ते जा रहे हैं, तो बस चलती रहेगी ब्रॉड इस तरह ही।
उस्मान साहब, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यूके में होते हैं आप? जी जी, मैं कैब करता हूँ और स्कूल है उसमें जॉब करता अच्छा अच्छा, यहाँ पे यूके में किस जगह पे होते हैं आप? हूँ। मैं 6 लंदन। अच्छा, लंदन में होते हैं, ठीक ठीक ठीक। अभी वो इम्तियाज भाई भी आए हुए हैं यूके, तो भी प्लेटफॉर्म का है प्रोग्राम नेक्स्ट ट्यूसडे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हाँ उनसे अभी तो मुलाकात। जी अभी स्कॉटलैंड में। हाँ जी जी, अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ट्यूसडे को ब्रैडफोर्ड आएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे उनके साथ मुलाकात होगी मेरी भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पता नहीं कोई बात हो रही है, शायद डिबेट भी कोई हो। वो रहील ने कोई मैसेज जो है वो अपलोड किया है ट्विटर के ऊपर। हील देखते का हैं अब क्या। क्रेडिबिलिटी तो उसकी कोई नहीं है एज सच। बैठता तो है ना उनके साथ, वो जो उनके चैनल है उस पे जी हाँ, ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। बैठता तो है। अच्छा, वो एमटीए वाले राहिल की बात करें, दूसरे की, ठीक। आप किसका समझे इसका। अच्छा, अभी इससे की बात है तो मुझे लगा शरीफ की बात करें। अच्छा, वो नहीं नहीं, इसकी क्या इसकी केड़ी इधर इधर की लेवल है इन्हीं की गल कर जी रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अगर नहीं हिल की भी उसकी इनकी होती बात। रहती है वहीं पे, तो इम्तियाज भाई से भी हुई है उसकी डिबेट्स, और अदनान भाई से भी काफी हुई है उसकी। उसी क्या उसी। जी जी। चले, अल्लाह करे कोई डिबेट वगैरह आए, कुछ जो है ना, कुछ प्रोडक्टिव हम लोगों को सुनने को मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। राम साहब, आपको मेरी तरफ से सूट है जनाब, आज जो आपने बिल्कुल बैकफुट पे चले गए हैं ना, तो ये सलूट मेरी तरफ से आपको है भाई जी, कि आपने उस बेगैरत को जो है ना उससे आगे जाने से रोका है, वरना उसको ने एक सेकंड लगाना था आगे जाते हुए। डिले हाँ जरूर थे, थोड़ी आ देर गए थे बाद ही। फौरन, समय इनको पता नहीं चला बात क्या हुई, बाकी हो चुका था मैं असल में ना ताज़ा जो। मैं कुछ जी जी, लेने के लिए आपको ना उतरा हूँ, तो मोबाइल मैंने डाला है जेब में, तो मेरे कान में वो लगी हुई थी, लेकिन वहां पे ना स्कूल टाइम था ना, बच्चों का शोर था, तो मुझे उस तरह सही तरह आवाज नहीं आई कि वो नहीं, क्या, आप क्योंकि पहुंचे वो बिल्कुल बहुत वक्त पे हो, आप पहुंच दोनों गए तरफ थे, से शोर हो रहा था जी ना। जी बिल्कुल ठीक किया है, थोड़ी देर बाद उतार दिया। वो क्योंकि पीर आपने पूछा साहब था ना उसको। रहील असल में, जी जी, रहील असल में बात भी नहीं कर रहा था, और पीर साहब उसको कह रहे थे कि रहील तुम खामोश हो। इसका मतलब है लेट आवाज जा रही थी पीर साहब को भी। उस्मान डार भाई, ये प्यारे हुजूर के वो जलसा सालाना पे कभी इत्तेफाक हुआ आपके वहाँ उधर उस इलाके में जाने का? नहीं अभी तक नहीं हुआ जी, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि जल्दी हो जाए। हाँ वहाँ पे है कि वो आपकी आईडी वगैरह देखते हैं कि आप वहाँ बैठे जाएं। वो हैं बंदे, उनको राब्ता कर, कभी किया नहीं राब्ता उनसे कि उनको बोलूं असल कि में बंदा प्ले कार्ड लेके खड़ा तो हो सकता है ना कि दिस इज अ फॉल्स प्रॉफिटहुड है जी, जाली नबूवत के दावेदार। असल में बंदा प्ले वो होता कार्ड ही लेके वहाँ बड़ा वो खड़ा हो जहाँ जाए। पे वो जहाँ पे जलसा होता है ना, वो लोकल जगह है, होती नहीं है, वो बाहर होती है बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ यही जाते हैं, और कोई भी नहीं जाता वहाँ पे। हाँ असल में वो काफ़ी बड़ी जगह है, कई एकड़ की, तो हाँ उसमें आगे तक होता है ये सारा, लेकिन गुजर कर तो जाते हैं कहीं से। हाँ, वो तो ऐसा है। एक मिनट बस, मैं जरा 27 क्लॉक इन एकड़ कर लूँ यहाँ इलाका है, पे। ये आई एम रेडी। इस्लामाबाद नाम रखा हुआ है। टुमारो फ्राइडे, यस।
ये लाइव चल रही है, सब खामोश हो गए हैं। खामोशी है। हाँ, वो अजीब सा, मैंने कहा कि सभी खामोश हो गए। असल में वो पीर साहब जो मसरूफ़ हो ना, माशाल्लाह से पीर साहब को गुफ्तगू करने का काफ़ी वो तसलसल से करते हैं। जब वो उनका माइक बंद हो तो हो सकता है सभी कुछ खामोश हो जाते हैं। जी जी फिर ही खामोशी होती है, वरना तो माशाल्लाह वो बड़ा स्टैमिना है उनका। जी जी, माशाल्लाह पीर साहब जो है ना, वाकई एक बात है कि जब किसी चीज को लेके चलते हैं तो फिर पूरी अपनी बात कंप्लीट करते हैं, बेहतरीन तरह से चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज को, चाहे जितना भी टाइम लगे। और मैं हैरान हूँ कि रहील जैसे बंदे के साथ वो उसके साथ भी पूरा एक्सप्लेन उसका तो कोई आगा पीछे ही नहीं है, कुछ उसका पता ही नहीं है। असल में राहिल की एक शुरू से गंदी आदत है कि वो बार बार लोगों को टोकता है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जब तक उसकी बात का जवाब नहीं देते जब तक उसकी बात का जवाब नहीं देते। अच्छा इसको ये भी कहते हैं कि यार तू सलाम करके क्यों मिर्जा वो करता है, मतलब मिर्जा की तो तौहीन है ना, मिर्जा ने तो इनकार किया हुआ है मुसलमानों को जी, सलाम जी। करने से, फिर भी बाज नहीं आते, ये बेवकूफ ये है। और दूसरी बात ये मुर्तजा साहब ने कही ना कि पीर साहब तो इसके मुंह मतलब राहिल की बातों का जवाब देना, राहिल की बातों का जवाब देने का मकसद ये होता है कि दूसरे जो खामोश साइलेंट है ना, जो कादियानी सुनने वाले, उनको पैगाम पहुंचाना होता है असल मकसद। ये बिल्कुल इनसे ऐसा। बहस करके हमें कुछ थोड़ी हासिल होता है, सच्ची बात तो ये है। अमन भाई ये तो बात जाहिल होती तो असल यही है, असल यही बात है। बहुत सारे सुन रहे होते हैं लोग। अहमद भाई और मुर्तजा भाई, आप कहाँ से? पाकिस्तान से? नहीं, मैं कराची पाकिस्तान से ही हूँ। जी जी, अच्छा, कराची से। कराची में किस जगह से हैं? मैं अभी कराची गुलशन गुलशन से। अच्छा, गुलशन इकबाल से। 1 नंबर। ऐसे माशाल्लाह। कराची में कोई मैंने 6 महीने और ये ऑलमोस्ट यूएसए अपनी में। लाइफ के वहाँ पे गुजारे थे। अच्छा, अच्छा, कितना टाइम हो चुका है आए हुए कराची? लास्ट 6 महीने तो मैं क्या? लास्ट टाइम आया था 2015 में आया था, 14 या 15 में। उस टाइम पे जोन का एक प्रोजेक्ट था 4G का, उस प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पे आया था कराची काम करने के लिए। तो 6 महीने रहा था। 6 महीने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची आपका जनाब घूमा था, लियारी नहीं आपका पूरा जो नहीं है घूम ना। सकते हैं, नहीं कोई दावा नहीं कर सकता कराची पूरा घूमने का। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अच्छा। जहाँ जहाँ आपका जो इसका जोन का जहाँ जहाँ पे टावर है ना, अच्छा उधर अच्छा तो मैं अच्छा गया हूँ। ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कराची जो है ना, मैंने पूरा देखा हुआ है। 2 दरिया आपका हो गया, नहीं अब तो कराची अब तो गुलशन। बहुत बदल गया है, अब तो बहुत जी जी बदल गया बिल्कुल। है, बहुत बदल जी हाँ। गया। 10 साल के अंदर, 15 साल में तो बहुत जी ज्यादा जी। चेंज हो गया है। अब कुछ इलाके तो कराची के लगते ही नहीं कराची है। अच्छा। और दूसरे मामला ये कि बिजनेस भी अब आपको भी अंदाजा है कि वो 10 साल पहले जो ये जो सोशल मीडिया और ये करीब से करे, अब तो बहुत ज्यादा जदीद हो चुका है, तो बिजनेस भी अलग ही स्टाइल का हो चुका है, मतलब हर चीज जी जी वो बिल्कुल। पुराना मैं इधर बदल गया। जो वो जो आपने DHS टावर, फेज हाँ फेज समझ 2 यूं कह लें, एक्सटेंशन थी वहाँ पे। टावर लगाने के बाद जब टावर लग रहे थे, आप सोचें जब हाँ। टावर लग रहे थे, आप कह रहे हैं ना, और इसके जी बाद जी तो शऊर आ रहा है लोगों में, तो बहुत ज्यादा हो गया अब तो चेंज। बिल्कुल ऐसे है। और अभी यहाँ भी ये पे कहता हूँ मैं DHS फेज 2 एक्सटेंशन है ना, वहाँ पे मैंने स्टे किया था 6 महीने। जी जी तो उधर से जी फिर हर जी। जगह वहाँ पे जाते थे काम शाम के लिए। नहीं, ये मुर्तजा साहब यूके में है ना, बाकी अच्छा। पूछो इनसे, जो पाकिस्तान, हाँ ये यूके में होते हैं, बाकी ये पाकिस्तान तो कहता हूँ ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है, सच्ची बात ये है पाकिस्तान बिल्कुल जैसा। ऐसे जो इसमें कोई अय्याशी शक हम नहीं। यहाँ करते हैं, जो अय्याशी हम करते हैं जी जी कि हर चीज के लिए काम वाला है, काम वाली हर चीज के लिए मिल हो जाता है, रख सकते हो, कर सकते हो। और वो भी बिल्कुल। माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि काम करने वाले भी को बुरी हालत है, उनका भी अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया हुआ है। यूरोप में ये चीज नहीं है, ये सहूलत आसान नहीं है जो पाकिस्तान में है।
असल में वेदर का भी बड़ा फर्क, मैं यूके में हूँ ना, यूके का सबसे जो वर्स्ट चीज लगती है मुझे वो यहाँ का मौसम वेदर। होता है। यहाँ पे बारिश और जो है ना वही चलती रहती है सारा साल। राणा साहब आप कहाँ से हैं? जनाब मैं हूँ पाकिस्तान। मुल्तान के साथ है एक टाउन अलीपुर, हैड पंजनत का नाम शायद आपने सुना हो, तो वहां से जनाब। ये सारा सराइकी है, सराइकी बेल्ट है सारा। जी सराइकी बेल्ट है सारी की सारे जी हैं। ठीक। तो यहाँ ब्रेडफोर्ड में है इंग्लैंड में। मैं तो कीसली है ब्रेडफोर्ड के साथ वहां पे रहता हूँ जनाब। आप जी। कहाँ पे रहते हैं? वो पढ़ा कीगली जाता है, लिखते कीगली हैं तो कीतली कहते हैं उसको मेरे। हाँ कीसली कहते हैं जी हाँ। आप कहाँ से? ब्रेडफोर्ड के करीब है जी, बर्मिंघम के करीब जी। अच्छा बर्मिंघम के करीब है। अच्छा अच्छा जी हाँ। सही। कभी बनाया प्लान लेक डिस्ट्रिक्ट जाने का? तो मैं तो कह रहा था, बल्कि मैंने शीकर भाई को भी कहा था, ये क्या उस्मान भाई है, इनके साथ प्लान बनाए लेक डिस्ट्रिक्ट का। जी, जी। अच्छी जगह है, चलो बंदा हाँ, आउटिंग कर लेते गर्मियाँ आ हैं। रही हैं, लंबे दिन हैं। जी 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 जी। मैं तो भी मालूम हमारे साथ है यहाँ स्किटन के आगे, काफी अच्छी जगह है, जी, उधर जी। आया हुआ हूँ तो अच्छा, थोड़ा सा। स्किटन है। हाँ जी, मैं कहा चलो आउटिंग के लिए मौसम अच्छा है, काफी ज्यादा बेहतरीन मौसम है आज का। जी जी। आगे ये बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं जुलाई में इंशाल्लाह। जी जी। जनाब मैंने आपको फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह कोई प्लान बने इस साइड पे आने का जी जरूर जरूर तो जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। चले इस राणा टिकटॉक साहब की ये वजह बता से दो, चले। ये मुर्तजा साहब अभी से नहीं है, ये तकरीबन मैं इनको 6 साल से जानता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से, ये हमसे भी अच्छा, पुराने हैं अच्छा जी। क्या ख्याल है मैं- मुर्तजा साहब? अल्लाह माफ़ करे जी, बंदा सीखता रहता है, कोई इतनी बात करना नहीं आती उस तरीके से, लेकिन यह है कि नहीं बात तो आप तो फिर भी कर लेते, हम तो इतनी भी नहीं कर सकते हैं। वो बस मिला जुला रुझान है अहमद भाई, कोई इतना ख़ास नहीं, लेकिन यह है कि चलें बंदा जुड़ा तो रहे ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, बंदा इतना मुंतशिर हो जाए कि कभी कोई बात कर दी, कभी किसी की बात कर दी, कभी किसी के पास जाके बैठ गया, कभी वहाँ बैठ गया, कभी क्या कभी क्या। तो एक जगह तो पक्के रहें ना। तो लेकिन यह है कि कुछ भाइयों की तबीयतें आपस में मिलती नहीं हैं, तो वो तो चलें अपना अपना होता है, लेकिन अच्छी बात जहाँ हो वहाँ वहाँ उसकी बैठना तायीद करनी चाहिए उसकी कि जी अच्छी बात है। अच्छा, और जब अच्छी कभी बात वो ना अच्छा, सुने तो मुझे भी बहुत जी, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मतलब ये जो इख्तिलाफ होते हैं ना आपस के, इसको यहाँ से दूर होना ये चाहिए है। आपस में। बिल्कुल मैं ऐसे कभी ही भी है। आपने देखा होगा, हम बैठते ही नहीं, उन ब्रॉडों पे भी नहीं जाते हैं जहाँ इख्तिलाफ हो ना, तो मजा ही नहीं आता। जी मेमन भाई, अर्ज ये है कि शैतान खुला दुश्मन है, जहाँ मोहब्बत हो और जहाँ दीन का पैगाम जा रहा हो वहाँ उसने भाइयों में इख्तलाफ डालना ही है, और वहाँ उसने ऐसा फितना खड़ा करना ही है कि आपको हो सकता है मैं बात करूँ आवाज़ ही आपको अच्छी ना लगे, लेकिन यह है कि फिर भी हमें वो मेन जो मरकज़ी पॉलिसी है, वो जो चीज़ होती है उसको लेके चलते रहना चाहिए। चलें किसी बात पे हर एक बंदे का अपना एक तरीका होता है कि वो उसको वो बात करता है, उसका एक फहम होता है। लेकिन जी जी बाकी मेरा एक तजर्बा देखा है मैंने, जब नामूस की बात आ जाती है, नामूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर हमारे आपस के झगड़े खत्म हो जाते हैं, ये देखा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हाँ, फिर हमारे ये है कि राणा कितने भी साहब, इख्तिलाफ हों, ये अभी इसमें राणा कोई साहब शक नहीं हमारे है। है कि मैं बात नहीं करता, मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन उनको भी इस बात पे बड़ी वो हुई तो ये नामूस पे आ गई थी बात, नामूस से रिसालत पर ही बात आई वही थी। बात है। हाँ वही बात है, इसी पे ऊपर आए हैं, आप भी इसीलिए आए हो। तो मैं भी सुन रहा था, फिर मुझे मौका जब मैंने कहा ऊपर आके वो जहाँ से बात चली तो वहाँ से बंदा चलेंगे दोहरा देता है उसको। मुर्तजा भाई हमारी जिंदगी से बढ़ के जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है हमारे लिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चाहे कुछ हमेशा बच्चे बैठे हुए थे, यकीन करें मैं एकदम से चीख के मैंने कहा, मैंने उसको रोका है कि भाई तुम मतलब ये क्या तुम लोगों के अंदर ये क्या सूअर वाली खसलत है कि जब भी कोई बात की जाए तुम लोग डायरेक्ट अटैक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हो, ये क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। ये इनको मेरे ख्याल में शायद कोई घुट्टी में शायद इनको पिलाया जाता है कि जैसे कोई बात आए और उसको जो है ना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जानी। अच्छा राणा साहब, आपसे एक बात करनी है छोटी सी।
मुझे ये बताएं, जी। इख्तलाफात देखिए हर किसी में होते हैं, आपके घरों में भी होते होंगे, बच्चों में, रिश्तेदारों में, सब जगह हो जाते हैं, तो क्या मिसाल जी। 1400 साल पीछे की देखते हैं जाकर? कभी सुनी है आपने जिंदगी में इख्तलाफात की घर की? कभी सॉरी? सुना है कि करते हैं आप लोग, करते हैं कभी? नहीं जी। सोच भी सकते हैं, सोच भी जाती है कहीं हमारी 1400 साल पीछे नहीं कभी आपस के नहीं। झगड़ों में वहां लेकर जाएं, तो नहीं, इनकी नहीं, क्यों कभी भी जाती है? नहीं। छोटी छोटी बात भी करो, कोई हल्की सी भी बात करो तो 1400 साल पीछे चले जाते, क्यों ऐसी गंदी सोच है इनकी? इस ये मैं ये सोच कह है। रहा हूँ ना, इनकी घुट्टी में जो है ना वो पिलाया जाता है, जो इनकी अपब्रिंगिंग इसी तरह से की जाती है कि जब भी कोई बात होती है डायरेक्ट हज़रत वसल्लम के ऊपर जाते हैं। इनकी अपब्रिंगिंग में ही मसला है। इस चीज़ को जमात में आम ये जो जवाबी इल्ज़ामी जवाब वाली बात है ना, इल्ज़ामी जवाब वाली, और वो भी भोंडे तरीके से, जायज़ तरीके से इल्ज़ामी जवाब नहीं, भोंडे तरीके से, ये इनके खुलाफा भी जब अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो इस तरह नाम लेते हैं किसी साबिक़ इलाके के बग़ैर सिंगल करके नाम लेने के, और ऐसी बात वो चीज़ इनके अंदर मौजूद है, तो वो फिर उभरती रहती है, निकलती रहती है। तो वो तो लाहौर में हमारा दोस्त वर्ल्ड कप की बात है मेमन भाई, तो वहाँ एक मिर्ज़ई को वो जानता था लड़का, वो शालमी में कहीं वो काम करता था या कहीं, तो उसने कहा कि यार को मिर्ज़ा साहब की बात करो। उसने कहा लानत पे जो मिर्ज़ा साहब की कोई और बात करो। वो मिर्ज़ई जान छुड़ाने के लिए जहाँ कुछ ऐसे ना बन पड़े, यहाँ ज़ाहिर है उनको बदतमीजियाँ करने का कोई आपकी बात बिल्कुल check and दुरुस्त balance है। नहीं। ये कंडीशन तो ये, हकीकत तो ये है कि 70% से ज्यादा नौजवान जो है ना, 70% में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। ये मेरा तजर्बा है। जमात छोड़ चुके हैं, मतलब वो इनके जो फ्रॉड के तरीके हैं, चंदे के, सब पे समझ चुके हैं। वो जमात रही नहीं है, सिर्फ मिर्ज़ा मसरूर का इंतजार है इनके बड़ों को। अगर मिर्ज़ा मसरूर गया तो बड़े इनकार करेंगे, तो छोटे तो खुलकर सामने आ जाएंगे। और तकरीबन 70% तो आ चुके हैं। इनको भी अंदाजा, जमात को भी अंदाजा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात समझते हैं, अगर तारक चौहान साहब इतने ही हो, आवाज़ आ रही है चौहान साहब? कोई नहीं, दूर हैं शायद। असल में ये मिर्ज़ा मसरूर, वरना ये सवाल चौहान साहब से पूछे ना, चौहान साहब इसकी तस्दीक करेंगे। अब वही मैं पूछने वाला था कि जब मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी साहब का इंतकाल हो जाएगा और खिलाफत के लिए वो चौहान साहब कहते हैं समोसे पकोड़े खा के खलीफा बनाते हैं, तो बग़ैर धुएं के जब वो खलीफा बनेगा कमरे के अंदर बंद होके, तो वो कहते हैं कि कोई ख्वातीन की कैंडिडेट भी हैं या कुछ और मसला रौला भी है, या हो सकता है इसी को साफ सुथरा करके जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात देते हैं नहीं, वो नौजवान को खड़ा कर देंगे। नहीं, नौजवानों को इल्ज़ामात पता चल जाएगा। जमात जिनका चांस था, क्या नाम उसका, अनस, मिर्ज़ा अनस है, और एक और ये मिर्ज़ा ताहिर से पहले कौन था? नासिर नाम है, मतलब नासिर अहमद, हाँ, अच्छा। नासिर अहमद नाम है किसी का। तो हो सकता है उन्हीं को वो कोई अशनान वगैरह करवा के दो दा के तो उन्हीं को खड़ा कर दें दोबारा। तो अब नौजवान अब इनके नौजवान भी समझ गए ना कि खिलाफत भी फ्रॉड होता है। इनको पता चल चुका है कि ये कहते हैं कि खिलाफत ने भी बनाती, कौन है कमेटी बनाती है खिलाफत में, और फ्रॉड ये करते हैं खलीफा खुदा बनाता है। तो उनको सब पता चल चुका है नौजवानों को, सारा फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। असल में अहमद भाई, ये जो खलीफा बनाने वाले हैं, ये तो नौजवान नहीं, ये पुराने खड़ूस किस्म के मिर्ज़ाई होते हैं। तो खलीफा तो उन्होंने चुना है। हाँ, वो इलेक्टोरल कॉलेज है ना कि उसको वोट दो, तो वो तो पुराने ही है ना, जो पुराने पापी लोग हैं, वही बनाएंगे, वही वोट डालेंगे। और ये भी बता दो, जो बनाने वाले होते हैं असल फायदा भी यकीन वही लेते हैं। करें, जिसने भी मिर्ज़ा मसरूर को चूज किया है, जी मैं कहता कि जिसने भी मिर्ज़ा मसरूर को चूज किया है ना, दूर फिटे मुंह उनपे कि उनकी ऐसी चॉइस थी। एक ऐसा शख्स आप उसको खलीफा बना रहे हैं पूरी उम्मत के लिए, सो कॉल्ड, और वो देख के कुरान पाक नहीं पढ़ सकता।
मतलब 30 ये इनकी सेकंड चॉइस है खलीफा की, 30 इससे सेकंड बुरी चॉइस कोई हो सकती। 30 सेकंड वगैरह पर्ची के नहीं बोल सकता। देखे बच्चों के साथ जी मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि फिटिंग हुआ उन तमाम लोगों पे जो कमेटी में बैठे नहीं। थे, तो जिन्होंने इसको चूज किया। आप समझिए, ये सिर्फ इसको तो डमी है, खलीफा तो डमी है, असल फायदा तो ये कमेटी को उठाती है। जी ये जी लिखा हुआ है, हाथी के दांत है, फायदा तो कमेटी उठाती है जो इसको कल्ट को चला रही है। ये कल्ट है, वो कठपुतली के तौर पे ना, कठपुतली के तौर पे बस चल रहे हैं। इसको भी अंदाजा हो चुका है कि जमात अब इसको बहुत ज्यादा वो ऐसा आ जाएगा ना। मीर क्या नाम है, कौन है इधर व्हाट्सएप ये टिकटॉक पे कौन है, मीर क्या नाम है, कौन अंसर रजा, नहीं अंसर रजा नहीं, ये मीर कौन है, मीर सलीम, मीर सलीम। हाँ, ऐसा कोई खलीफा आ गया और उसने इस तरह की बातें करना शुरू की तो जमात में जब ये सोशल वो डिजिटल मीडिया का दौर है, अब ऐसी बेवकूफ़ियत ज़्यादा करेगा तो जमात का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसा खलीफा लेके आओ खामोश, जिसको कुछ बोलना ना आता हो और जमात चलती रहे। इन्होंने जितनी कोशिश की धक्का देकर चलाने की कोशिश की, अब ये नाकाम, अब इनको कामयाबी मुश्किल हो गई। मतलब बहुत मुश्किल हो चुका है कि जमात आगे चले, बहुत मुश्किल है। फिर कोई बात कर लेता था और वो सवाल जवाब का, जिस तरह ये मिर्जा मसरूर साहब चौहान साहब कहते होते हैं रोटियां ही चेक करते हैं कि जनाब हाँ जी, मुर्तज़ा साहब वो दौर दूसरा था, अब ये दौर दूसरा है और आने वाला दौर आगे और मजीद अलग है। इनके पास ठीक है ना? एग्रीकल्चर तो की मुश्किल है। डिग्री है, मिर्जा मसरूर साहब के पास एग्रीकल्चर की डिग्री है और मेरे ख्याल को 2-2.5 साल अफ्रीका में किसी कॉलेज का इंतज़ाम इन्होंने संभाला है, क्योंकि वो उधर से मिर्ज़ा ख़ानदान के सिलसिला था उनका, तो जनाब उनको पकड़ के खड़ा कर दिया कि जिस तरफ मोड़ेंगे वो मुड़ जाया करेंगे। जो भी कह लो, बाकी है आगे मुश्किल दौर है और बहुत मुश्किल है जमात के लिए, इस कल्ट के लिए, क्योंकि अब ब्रेन वॉशिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों को करना। वो दौर सादा था, मीडिया था नहीं, मालूमात थी नहीं, किसी को भी कुछ इल्म नहीं था। अब तो ज़रा सी बात पता चलती तो मैं फ़ौरन गूगल सर्च कर सकते हैं, हम लोग तो तस्दीक कर सकते हैं। वो दौर नहीं है। अच्छा मेमन भाई, आपने देखा कि हम कहीं कहीं ना वीडियो यूट्यूब पे देखा करते थे कि फलां बंदे ने जमात छोड़ी, उसने अपना तजुर्बा बताया। यहाँ तो आए रहते हैं। बिल्कुल। अरशद बच्चे एक मिनट, तो अब देख लें ये अपना तलत मलक जो है, ये बड़ी उम्र का बंदा है, इसने भी तंग आके जमात को छोड़ा। नौजवान को सवाल करते हैं, आजकल के नौजवान हैं, वो कहते हैं कमाते हम हैं सारा दिन रात लगा के, तो फिर इनको चंदा किस वजह से दें, और वो भी लाजमी है। ज़कात इतनी लाजमी नहीं है कि जितना लाजमी चंदा इनके लिए लाजमी है। बिल्कुल, हमारे पर ज़कात जो है साल की आमदनी पर है, अगर है तो आमदनी उस पर, वो भी 2.5%। ठीक है ना साहब? अहमद मेमन साहब, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े आपने यहाँ पे फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं टेक्स्टों में ये झाड़ा झाड़ी क्या? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इसके अलावा कुछ सिखाया, इंजीनियर को सिखाया? नहीं, इंजीनियर ने इत्थे रख झाड़ा झाड़ी, इसके अलावा कुछ सिखाया है इंजीनियर ने तुम्हें जबान में? मैं कह रहा हूँ आप नीचे तो तुम वो, हम तो कहते हैं, आज भी कहता हूँ मैं, तुम वो कुत्ते की दुम हो जो तुम 1000 साल पाइप में रखो तो टेढ़ी निकलेगी। तो आप गाली क्यों देते हैं? इंजीनियर से रजू कर लिया है पप्पू ने ना। नहीं, इंजीनियर को छोड़े, इंजीनियर की बात नहीं हो रही मेमन साहब। मैं इंजीनियर पे लानत डाल दी क्या? अच्छा, आपने 2 नंबर बाबू पे लानत डाली है? अरे हाँ, 2 नंबर जो भी बाबे हैं लानत है, अगर जो है, अगर ये बाबे और सच्चे बाबे, अगर सच्चे बाबे ना होते, आज सच्चे बाबे ना होते तो तुम जैसे कंजर आज हिंदू बने भी होते। आ गया अपनी औकात पे। हाँ तो तुमने पिछाड़े, हाँ तो तुम, अब तुम्हारी जबान में बात की जाएगी। जुबान कितनी गंदी है यार, आप नहीं, गंदी जबान नहीं है, गंदे गटर को देखकर गला तो निकलती है, तो हमें भी हमारे मुंह से मेरे भाई आगे राहिल यहाँ पे मौजूद था, आप नीचे गंदी गाली के दे रहे थे। कुछ नहीं आपने जी मतलब भाई अहमद भाई याद आ रही थी। अच्छा, हम सारे मुखालफत रखते हैं ये यार भाई। जी जामी साहब, अस्सलाम वालेकुम जामी साहब। बात उससे होती है जिसकी घर में भी कोई इज्जत हो।
पप्पू साहब की तो घर में कोई इज्जत नहीं है। बात जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग चला मैंने दी एक अभी, question- अभी रिकॉर्डिंग चला दूंगा मैं, क्वेश्चन जी मुर्तजा तो भाई अभी चला दूंगा मैं रिकॉर्डिंग। question इतनी अच्छी बात की जा रही जिसकी थी, मैं आपको हाँ, अच्छा ढंग अहमद डाला भाई एक इसने बात बातों बताता हूँ, में। एक बात पप्पू बताता हूँ, मलिक- जिसकी ना घर में कोई इज्जत हो ना, उस बंदे को आप जवाब देते, उससे बात करते अच्छे। जिस बंदे की ना घर में इज्जत है ना बाहर, उसने अपना कोई एक धड़ा को प्रॉपर चीजें बनाई हैं, कोई अपने आप को प्रूव जी, नहीं, उस बंदे यार, से मत्था कि मारना भाई- बेवकूफी है। जी जी यार इसकी वो तो इसकी मिसाल धोबी के कुत्ते जैसी है, ना घर का है ना घाट का है, यूं कहना आप, यूं कहना चाह रहे हैं। अच्छा पप्पू मलिक, ये बात आप बता दें, आवाज आ रही ना आपको, मुर्तजा भाई आ रही है कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जेल में, उनकी जी। क्या बात आपको बुरी लगी कि आप उनसे भाई रुजू इसको कर लिया आपने? नहीं, मुर्तजा साहब यार भाई, भाई भाई, यार question- जामी भाई मुझसे ये क्वेश्चन किया ना, बकवास मुझे जवाब आदमी दे है, देना। इसको यार, फारिग भाई- करो यार, क्यों उससे सवाल कर रहे हैं? भाई आप जामी भाई कोई मुझे काबिल है तो जवाब उससे देना सवाल किया जाए। इसको छठा यार, कलमा ये छोड़ दे, भाई- इसको छठा कलमा नहीं आता होगा। यार भाई एक मिनट सुन लो यार, बात कर लेने दे यार, के भाई कोई बात मुर्तजा नहीं। भाई- हम ये पूछना चाहते हैं उनको छोड़ा क्यों है, किस वजह से छोड़ा? मुर्तजा भाई जो अरेस्ट हुआ, फिर उसके ऊपर केस बना, वो फिर वो उसको जो वहां से रिहाई मिली, उसके आने के बाद इसका जो इसने 1-2 इंटरव्यू दिए, और सबसे बड़ी बात है इसने माफी नहीं मांगी। मेरे ख्याल में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, मैं मानता हूँ इसने ठीक है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं था बनना चाहिए, इसको अंदर नहीं था जाना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, इतना भी सख्ती नहीं थी होनी चाहिए जितनी इसके ऊपर होगी, लेकिन फिर भी जब ये बाहर आया था, ये अनकंडीशनल तौर पे माफी मांगता सारे मुसलमानों से कि जाने में मैंने जो अल्फाज बोले हैं, मैं सबसे अनकंडीशनल तौर पे माजरत चाहता हूँ, बाकी मैं जानू अदालतें जाने। तो यार इससे आते साथ ही इमरान खान के बारे में अनाप शनाप और गवर्नमेंट के कसीदे पढ़ना शुरू हो गया, और फिर 1-2 झूठ भी इसने बोला, यानी कि वो जो ब्रॉडकास्टर और जो लड़का इंटरव्यू ले रहा था, उसको ये खुद सिखा था ये क्वेश्चन करना, इमरान खान के बारे में मुझसे पूछना, ताकि वो पूछे और मैं इमरान खान की बुराई करूं। मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मिर्जा जेल में जो है वो काबिल एतबार बंदा नहीं है, यही आप कह रहे हैं? नहीं नहीं काबिल एतबार से मुराद है कि यार वो मुझे जो लग रहा है ना, वो उसकी कोई डील हो गई थी गवर्नमेंट के साथ, या नहीं, मतलब ऐसा लग काबिल रहा है। एतबार जी। नहीं ना रहा, वो काबिल एतबार नहीं रहा, ऐसे ही है। यार बस काबिल एतबार से मुराद है, फिर यार मुर्तजा भाई ये तो मैं अल्फाज नहीं नहीं, बोलूंगा, मुराद लेकिन ना बात ये लें, है- किसी एक तरफ हो, नहीं मुबहम बात ना करें। आप कहें कि जी वो बिल्कुल नहीं रहा जी, काबिल काबिल एतबार नहीं रहा, नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, 100% बहुत नहीं रहा शुक्रिया, जी, बहुत जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया यार के भाई, आप कर लें बात, अब जो आप कर रहे थे। मैंने क्या बात करनी, बिला वजह की आप बहस कर रहे हैं उस शख्स से जो जिसकी अपनी जाति कोई मैंने बात पूछनी थी, वो आप देख लें, आप अच्छा रिजल्ट निकला है ना? नहीं, वहाँ कि जिस बंदे देखें वो उनका जाती मौक़िफ़ है, और इस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। किसी को पसंद करना या ना पसंद करना एक अलग बात है, और उस पर इल्ज़ामात लगाना या उसकी दलील देना, जैसे अभी इन्होंने एक बात की है और उस पर दलील दी है, ये अच्छी चीज़ है। इनसे शिकवा इस बात का, ये कहते हैं बाबों के पुजारी। भाई कभी किसी आलम दीन को देखा है ये हरकतें करते हुए? नहीं देखा। जाहिल करते हैं भाई, वो तो हम आपके साथ हैं कि जो जाके वजारात पे सजदा भाई करे। मुझे बताए टिकटॉक के ऊपर कौन सा आलमी दीन है? एक और आलमी भाई, दीन का नाम लें टिकटॉक के ऊपर, जो पप्पू ने गाली कहा बात कि मैं जानबूझ के यार छेड़ने भाई- के लिए बाबों की बात कोई करता भी हूं। गालीबाज नहीं है। आप यार गालीबाज भाई का मुझे दिखा रहे एक हैं। आलमी दीन का मैं बताइए जो जानबूझ के टिकटॉक बात के ऊपर हाँ। गाली बात नहीं है। मुफ्ती मुझे बताएं नाम हाँ लेना। मुफ्ती हसन रजा यल्दरिम साहब, जानते हैं आप उन्हें? मुफ्ती हसन रजा यल्दरिम साहब, ये खत्म सर बहुत बड़ा नाम है। मुफ्ती मुबशर साहब से, मुफ्ती और भाई- मुबशर साहब से बड़ा नाम है, मुफ्ती मुबशर साहब से बड़ा नाम है। सबसे बड़ा गालीबाज है, खुदा की कसम टिकटॉक के ऊपर सबसे बड़ा जो गालीबाज सर कोई गाली नहीं दी उन्होंने, कोई गाली वो नहीं दी, सबसे बड़ा मुफ्ती मुबशर है। कोई गाली नहीं दी उन्होंने। अच्छा ये मैं मिर्जा बताता हूँ की ये किस किताब तरह खोल से, देता है। अहमद भाई मैं बताता हूँ ये क्या कहते हैं। ये जिस तनाजुर, अरे यार एक मिनट सुन लो यार मुर्तजा भाई, एक मिनट सुन लो। ये जिस तनाजुर में कहते हैं ना, वो तनाजुर सुन लें। ये इस तनाजुर में कहते हैं जैसे कि मैं ये बताऊं कि मिर्जा साहब ने ये गालियां दी हुई हैं, और मैं उन गालियों को बताऊं कि यार ये देखो उसने ज़ुरियतुल बगाया का है। अब कोई सुनने वाला, यहाँ तो मुझे मेरी जिम्मेदारी में है कि मैं वो हवाला दिखाऊं कि जहां मिर्जा साहब ने किसी को ज़ुरियतुल बगाया का है। अगर मैं वो नहीं दिखाता तो दो बातें हुई, एक तो मैंने उस गाली को रिपीट किया यानी खुद दे दी, दूसरा मैंने मिर्जा साहब पर तोहमत लगाई। इस तनाजुर में बात हुई, और इस तनाजुर के अलावा
मुफ्ती मुबशर साहब ने कहीं किसी को कोई गाली नहीं दी मेरी इल्म के मुताबिक, ठीक है। ये है एग्जैक्टली वो चीज जिस पर ये खड़े होकर उनको गालीबाज कहते हैं। तो ये पूरी नाइंसाफी है। हाँ, इन्होंने सुना, इन्होंने हवाला मांगा, आज तक नहीं मांगा कि सर ये जो आप कह रहे हैं इसमें आप दो चीजों में फंसते हैं। अगर तो ये चीज आपने की हुई है तो लाएं चीज का हवाला दे दें, ठीक है। हवाला आ गया तो इसका मतलब है कोर्ट करना पड़ा, साहब के बारे में चीज को कोर्ट करना। साहब और अगर हवाला नहीं आया तो मैं इनके साथ हूं कि यहाँ से गाली भी दी प्लस उसके साथ तोहमत भी लगाई। ये तो दो बातें होगी, ये तो खाली गाली पे रुकते, मैं कहता हूँ इसके साथ तोहमत भी होगी वो कि एक चीज को किसी ऐसे शख्स की तरफ मंसूब करना। भाई अगर कोई टिकटॉक पे इस टाइम हम सारे भाई बैठे हुए हैं, कोई आलमी दीन हो, फॉर एग्जांपल ये सर मैं आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सुने अपने ना, भाइयों की जाहिद बात कर अस्कानी रहा हूँ। साहब अगर बोले, अच्छा मैं यार के भाई ये यल्दरम सुने साहब ना। कौन है, इनके बारे में कुछ बताइएगा। नहीं मुर्तजा भाई मुझे मुफ्ती हसन रजा यल्दरम साहब बहुत जबरदस्त आलम दीन है। मुर्तजा भाई मैं टिकटॉक पे और वो मिर्जा जेलनी का रद्द करते हैं। मुफ्ती मुबशर कैसा गाली बात है, आपस में बात कर रहे हैं, छोड़ दो। अच्छा जामी साहब ये बुजुर्गान दिन ना होते, एक मिनट जामी साहब, ये बुजुर्गान दिन ना होते तो आज हमारी मेमन बरादरी तकरीबन 25 लाख से ज्यादा की है। ये ठट्ठे के साहबी हैं जिन्होंने मुसलमान किया, हमारे मेमनों को हम वाणियत हिंदू ना करते ये बाबे, तो आज हम भी वाणी ही होते हैं। असल में ना यहाँ 3-4 चीजें क्लियर करें। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमन भाई आज से 5 साल के बाद पता बढ़ गया। है एक मिनट खामोश हो जाओ पप्पू, लोग तुम्हारी बात नहीं है, मैंने जामी साहब से बात कर रहा हूं। खत्म नबूवत के मुजाहिद टिकटॉक पप्पू पे ना मैं जामी साहब से बात कोई कर रहा मॉड हूं। नहीं है यहाँ पे जो इसको, एटलीस्ट मैं नहीं हूँ। अच्छा पहली तो बात ये है, ये क्लियर कट सुन लें, वो औलिया इकराम होते कौन है? औलिया इकराम वो होते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर चलने की, वली बनने का फार्मूला सिर्फ ये दो चीजें हैं। पहला, ये यकीन, ये पल्ले बांध लें अपने, वली बनने का सादा सा फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इल्म दीन आता है। पहला, आपके दिल में किसी मुसलमान, किसी मोमिन का बुग़्ज़ ना हो। दूसरा, आप जो नवाला खा रहे हैं ना, वो हलाल है या हराम है, इसकी तमीज़ आपके पास हो, तो अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा। और जब अल्लाह अपने करीब करता है तो उसका करीब करना क्या होता है कि वो आपके सीने में शरीयत का इल्म डालना शुरू कर देता है, यानी उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है, उसे अल्लाह रसूल जो है ना ये समझ देना शुरू कर देते हैं। ये तो होगी एक बात। अच्छा, जो ढोंगी, चरसी, भंगी, नंगे फिरे फिरते हैं जो बाबा जी, लानत भेजो ऐसे लोगों पर। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। और वो हर वो शख्स जिसको हम वली कामिल मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वो आलम दीन भी है, उसे शरीयत का इल्म भी था, और वो बंदा हाफ़िज़ कुरान भी था, और उसने बहुत सी, वो कहीं से चल कर आया और उसने एक जगह जाकर दीन फैलाया। अब याद रखें हमेशा, असर यार पप्पू साहब आपसे बात ही नहीं हो रही, मैं एंटरटेन ही नहीं करना चाह रहा हूँ आपको। आप कौन है? पप्पू बात करने दो, आते नहीं थे भाई, इसको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा। वो बिल्कुल जो नींद आते हैं, जो इसको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा यार, कोई मोड नहीं है जो इसको खामोश करे। आपको एंटरटेन कर रहा हूं मैं तो अपने भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूं। अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। वली बनने के लिए पहली दो शर्तें ये हैं कि आप के दिल में किसी मोमिन का, किसी मुसलमान का बुग़्ज़ ना, और दूसरा हलाल हराम के लुकमे की तमीज़ हो। फिर उसके बाद आता है कि आपके पास इल्म दीन हो, ठीक है। और जिसके पास इल्म दीन है उस पर जाहिर सी बात है तहारत के मामलात भी आते हैं सादिक। जिसको ये अकल है कि दीन पढ़ना है, और जो साहिब अकल है, जो साहिब अकल है और उस पर दीन शरीयत लागू होती, तो अल्टीमेटली वो गंदा कैसे रह सकता है? वो गंदा रह सकता तो वली कैसे बन सकता है? वो तो वली नहीं हो सकता। बड़ी प्यारी बात आपने की। वो मैं सुनना चाह रहा था कि यल्दरम साहब के बारे में कुछ बताएं, कहाँ मैं वो अर्ज कर देता हूं, लेकिन एक चीज जो है ना वो है, तो यहाँ एक चीज कवर अप हो गई कि हम उन औलिया इकराम को तस्लीम करते हैं। लंबी छोड़ता है इसको। पप्पू मलिक साहब आपसे बात हो रही है यार, इसको कोई उतार भी नहीं सकता नीचे। मैं आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूं पप्पू मलिक साहब, मैं अपने अहमद भाई को एंटरटेन कर रहा हूं और उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल औलिया इकराम का, हम सारे अल्लाह के वली हैं, हम सारे। सर मैं आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूँ, आपको एंटरटेन, आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूँ यार। इसको नीचे गिरा सकता है कोई मॉड है ऊपर प्लीज, जो इसको चुप करवा ले प्लीज।
एवं ही मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं कौन खामखा, मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं। मैं तो अपने भाई का सवाल का जवाब दे रहा हूं और उसके बाद मुर्तजा भाई की तरफ भी आता हूं। तो वली के लिए 3 चीजें होना जरूरी, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो बता चुका। अब आते हैं उन औलिया का, चल बोल पे किधर है कुरान हदीस से साबित करें, कहां पे लिखा हुआ है ये 3 चीजें जी? जब मैं आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूं, हु द हेल आर यू, मैं आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूं, बात खत्म। अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं आप बार बार बोल के। गैरतमंद होता ना जितनी बार मैंने कहा कि किसी को, आपने लगाई सर आपको मैं एंटरटेन ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप चुप हो जाओ सर, मैं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कुरान हदीस की कोई एक सर आपको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा, औकात बना रहे हो, वलीउल्लाह ऐसे बनते हैं, आपको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा, रेफरेंस आप इंसिस्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा। आपको जब एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा, तो जब आपको ही एंटरटेन नहीं किया जाता तो आपके सवाल को कैसे एंटरटेन किया जाएगा? नहीं सर, आप इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, ये 3 चीजें हो गई, आगे चलते हैं। हमेशा याद रखें, असल की ही नकल होती है, असल की ही नकल होती है। कभी आपने सुना है कि 10,000 का नोट पाकिस्तान में नकली बन गया? क्यों? है ही नहीं। जब असल नहीं है तो नकल कैसे बन सकती है? हम तो खुद तस्लीम करते हैं कि औलिया इकराम जो असल में हकीकी सच्चे सुच्चे औलिया इकराम थे वो मौजूद थे, जिन्होंने हक सच इस्लाम की तालीम दी और हमें इस्लाम पर चलने का हुक्म दिया, वो मौजूद थे, वो अपना काम करके चले गए, दैट्स इट। अब चूंकि इस्लाम को निशाना बनाना था और इस्लाम का रास्ते में रोड़े अटकाने थे, तो गैर मुस्लिम ताकतों ने अपने एजेंट खड़े किए और कुछ जाहिर सी बात है लालची लोग भी हैं, उन्होंने ये ढोंग रचाना शुरू कर दिया, गंदा रहना शुरू कर दिया, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस बात को तस्लीम करते हैं, ये बात तो हम तस्लीम करते हैं ना, कि जो शख्स साहिब अक्ल है उस पर शरीयत लागू होती है, और जिस पर शरीयत लागू होती है उस पर ताहरत के मामला भी लागू होते हैं, और जब ताहरत के मामला आए तो वह पाक अपने आप हो गया। फिर आगे चलते हैं तो चीजें चलती हैं। ये होगी सादा चीज। औलिया इकराम ने आकर हमें दीन दिया, दीन यानी पहुंचाया, ठीक है, ये होगी सादा सी बात। अब बिला वजह, हाँ, अगर कोई शख्स, आखिरी बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपना मुर्तजा भाई की तरफ आता हूं। आखिरी बात राजा भाई, मैक्सिमम 1-1.5 मिनट और। आखिरी बात, अगर कोई शख्स अपनी जहालत की वजह से वो गैर शरई अमल मज़ार पर जाकर करता है या नामहरम औरतें वहां जाती हैं, ये हमारी गलती तो थोड़ी है, ये तो उल्टा मुआशरे की गलती है, ये मुआशरे की गलती। हमने क्यों ना दीन सीखा, क्यों ना दीन सीखा? और हमें पता हो कि जब भी आप मज़ार शरीफ पे जाएं, किबला रू हो, 10 हाथ दूर खड़े हो, हाथ नहीं लगाना आपने, और आपने ज्यादा झुकना नहीं है, अदबन अपनी थोड़ी सी गर्दन झुकाएं, फातिहा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद ये कहें कि या अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, इस पर रहमत की जो बारिश हो रही है उस बारिश में से थोड़ा सा हिस्सा, तेरी रहमत का बारिश में से थोड़ा हिस्सा हमें भी अता फरमा। मेरी ये हाजत इस नेक बंदे के वसीले से मैं तेरे सामने पेश करता हूं कि मेरे अमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये तेरा नेक बंदा, यहां रहमत की बारिश हो रही है, वो बारिश के 2 कतरे मुझ पर भी गिरा दे, मेरी ये हाजत है, तू मुझ पूरी कर दे। वसीला देना हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा से साबित है, फारूक आजम से साबित है, या हदीस मेरे जिम्मे, ये हवाला। वसीला जायज़ है, लेकिन ये जाके कहना सजदे देना, पटखना, बाबे आप उत्तर दे दे, हराम है यार। बेटा देना, हर चीज पर अल्लाह कादिर है। अच्छा यानी सर, और अल्लाह अगर किसी को इज़्न दे, अल्लाह अगर किसी को इज़्न दे तो वो चीज कर सकता है। जैसे अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को इज़्न दिया, कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो मुर्दे जिंदा होते थे। अगर अल्लाह ना चाहता तो जनाब ईसा अलैहि सलाम जाती तौर पे कुछ कर लेते, कत्ल ना करते। हजरत मूसा अलैहि सलाम का असा मारना पानी में, वो उन्होंने जाती तौर पे मारा है? नहीं, अल्लाह के इज़्न से किया है। हजूर अलैहि सलाम का मेराज शरीफ पर जाना जाती तौर पे था। अल्लाह के बंदे बस करो। इतनी सी बात है। अच्छा, जलदरन साहब जो है ना, इनका आप नाम सर्च कर लें, मुर्तजा भाई। अल्लाह के बंदे बस करो, कब्रों की तारीफ को छोड़ दो, कुरान और हदीस की बात करो प्लीज। हस्कानी साहब, कब्रों की तारीफ छोड़ दो किसने की? प्लीज, इस टॉपिक को छोड़ दो। आप हस्कानी साहब, ठीक है हस्कानी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ कोई सवाल पूछा गया, मैंने वो किया, और कब्रों की तारीफ मुझे पता आप कौन है, तो आप ना अपनी हदूद में रहें।
आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। भाईजान मैं खड़काने पे आया तो मैं आपको भी खड़का दूंगा, मुझे पता है आप वहाबिज्म से ताल्लुक रखते हैं, भाई और वहाबिज्म की ये औकात, ये मैं आपको ठंडा कर दूं। अब आपने जो किया ना, आपकी औकात ये है कि वहाबिज्म ये 18वीं सदी से पहले था नहीं। ये पीर साहब वो औलिया अल्लाह की बात हो रही है, को छोड़ दो, तुम लोग नहीं वो छोड़ दिया, वो यजरम साहब के बारे में आगे आगे इंसान जनाब मिनी गॉड कौन है नाल जनाब ਉਹ ਸਾਡੇ